Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In previous lecture, we have discussed various topics. I will repeat you the previous lecture. In previous lecture, we have discussed accounting cycle, auditor's opinion and auditor's report, closing of temporary accounts, T accounts, balance sheet formats. We have discussed in balance sheet formats, two formats, report format and account format, types of assets, inventory methods. Today we will discuss the following topics: basic elements of the balance sheet, assets, current and fixed assets, different methods of depreciation and current liabilities. What is the current assets? Already I have told you, current assets means itself cash or easily convertible into cash, that is called current assets. Expenditures made in advance of the use of the services or goods. Examples: prepaid expenses, just like payment in advance for advertising, payment in advance for mobile card, payment in advance for rent, payment in advance for insurance. These are the examples of prepaid assets. After detailed discussion of prepaid assets, we will discuss the long-term assets. First of all, we will discuss the tangible assets. Already I have told you, tangible assets means you can touch, you can feel, that is called tangible assets. First asset is land, carried at acquisition cost, not subject to depreciation, natural resources are depleted. What does mean? कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करेंगे और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक माइंस, उनके ऊपर डेप्लीशन चार्ज करेंगे. बिल्डिंग्स, अनदर एसेट इज बिल्डिंग्स, कॉस्ट प्लस परमानेंट इंप्रूवमेंट्स इन बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएटेड ओवर दी यूजफुल लाइफ. क्या मतलब कि बिल्डिंग जो है हमारा एसेट है, उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू प्लस उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, यानी कि आप बिल्डिंग के ऊपर एक और रूम बना देते हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी आपकी बिल्डिंग के एसेट में ऐड होगी और हम उसकी डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड चार्ज करेंगे. मशीनरी, another asset, acquisition cost plus delivery of machinery cost, installation of machinery cost and permanent improvement cost. All costs will be added in the cost of machinery, and machinery will be depreciated over the useful life. Construction in progress, assets under construction transferred to permanent assets account upon the completion of construction. यानी कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जो एसेट्स होंगे वो भी पार्ट ऑफ द बिजनेस होंगे और एसेट्स होंगे, और एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ building, you will have to
transfer the assets into the business, that is called assets. Fixed assets के ऊपर we will have to charge the depreciation. Accumulated depreciation carries to date depreciation of plant and assets. Factors used in depreciation calculation. What are the factors are included in the depreciation calculation? Cost of the asset, length of the life of the asset, यानी कि वो एसेट कितने अरसे तक हम यूज करेंगे, उसकी लाइफ डिसाइड करेगी कंपनी. एंड एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एसेट, आई मीन स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू. Depreciation methods. We will discuss at this stage 4 types of depreciation methods. Dear students, first method is straight line method. Straight line method means कि at the end of the year आपकी same amount depreciation charge की जाएगी. और जबकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. रेजिडुअल वैल्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ. तो आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक जैसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सेकंड मेथड इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. अनदर नेम इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड. इट मीन्स कि आप इसका कोई फार्मूले के तहत आप इसकी डेप्रिसिएशन नहीं फाइंड आउट करेंगे जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन में किया, लेकिन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इसकी रेजिडुअल वैल्यू हर हाल में मौजूद रहनी चाहिए. और ये डेप्रिसिएशन आपकी हर आने वाले नए बैलेंस के ऊपर चार्ज की जाएगी. आई मीन सपोज cost of the asset is 100,000, depreciation is 10%. First year we will charge the depreciation 10% on the cost of the asset 100,000. Depreciation will be the 10,000. Next year we will charge the depreciation 100,000 minus previous year depreciation 10,000. Remaining balance will be the 90,000. Then we will charge the depreciation at the rate of 10% on 90,000 rupees. Next year depreciation will be the 9,000. That is called declining balance method. Here we will discuss the double declining balance method. Another name of double declining balance method is accelerated depreciation method. Another name of declining balance method is 200% depreciation balance method. It means normal life of the asset is given and normal useful life of the asset is given. हम नॉर्मल रेट को डबल कर देंगे. सपोज एक एसेट की लाइफ जो है वो 5 years है, तो सालाना उसकी डेप्रिसिएशन 20% बनती है और एट द एंड ऑफ 5 years वो डेप्रिसिएट होके 0 हो जाएगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम 20% को डबल रेट चार्ज करेंगे. यानी कि 20% डबल क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी? वेरी इजी, आप मुझे बता सकते हैं. आई कैन टेल यू 20% विल बी डबल विल बी 40%. तो वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% under the method of double declining balance method. Third method is sum of years digit methods. What does mean sum of years digit methods? Suppose one asset life is 5 years.
how many digits in the 5 years? 1, 2, 3, 4, 5. You will have to add up all the digits. कैसे? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. That is called sum of years digit methods. इसका फार्मूला भी स्ट्रेट लाइन की तरह है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड्स। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का भी सिंपल तरीक़ेकार है, पहले आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर लेंगे, देन यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। लास्ट मेथड इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्या मतलब कि जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे उसी रेशो से आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सपोज कि आपकी इस मेथड के तहत लाइफ ईयर्स में नहीं है, यूनिट्स में है। सपोज एक एसेट आपने बाई किया और उसकी टोटल जो लाइफ है वो 100,000 यूनिट्स है, तो लिहाजा 100,000 यूनिट्स आपके, चाहे वो आप प्रोड्यूस कर लें विद इन 1 ईयर, चाहे वो आप 10 ईयर्स में करें, चाहे 5 ईयर्स में, तो दैट विल बी दी यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। In the balance sheet, we will present the assets. How we will present the assets? Cost of the assets हम inner column में लिखेंगे, minus accumulated depreciation of the asset. Remaining balance will be transferred into the outer column. Outer column means final column. That is the presentation of assets in the balance sheet. Dear students, you can see straight line method. Cost of the assets is given $10,000. Useful life of the asset is 5 years. आप स्लाइड में देख सकते हैं, very easy. Our estimated salvage value is $2,000. Now we will have to calculate the depreciation according to the straight line method. Formula is given here, cost of the asset minus salvage value divided by useful life of the asset. Cost is 10,000 minus 2,000 salvage value is equal to 8,000 divided by 5 years life. तो आपकी पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है $1,600। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत आपकी डेप्रिसिएशन हर साल एक जैसी आएगी। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट इज इक्वल, sorry, you can see in the question depreciation of the asset at the end of the year is equal. First column shows that the number of years, second column shows that the depreciation computation, and third column shows that the accumulated depreciation. Fourth column of the question shows that the cost of the asset, and last column shows that the book value. Dear students, हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स में 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स आपने लिखे, देन 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन क्योंकि सेम है, $1,600, $1,600, $1,600 एंड सो ऑन। देन हमने accumulated depreciation. What does mean accumulated depreciation? Accumulated depreciation क्या है कि आपने एक साल की डेप्रिसिएशन पहले चार्ज की, वो एज इट इज आएगी, सेकेंड ईयर की उसमें एड अप हो जाएगी, थर्ड ईयर की दोनों में एड अप हो जाएगी, फोर्थ ईयर की तीनों में एड अप हो जाएगी। तो आप ये ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन accumulated 1,600 is given, second year 1,600 plus
First year 3200, then third year depreciation 1600 is also added in these previous 2 years. Now it is 4800. Then fourth year depreciation is added in the last 3 years. Now it is 6400 and so on. And last accumulated depreciation is 8000. And how you will prepare the book value column? You must deduct the depreciation expense column from the book value. ये बात माइंड में रखें कि कभी भी accumulated depreciation आपने बुक वैल्यू से माइनस नहीं करनी. तो क्या किया, फर्स्ट ईयर में जब आपने स्टार्ट किया एसेट तो उसकी जो बुक वैल्यू थी 10,000 थी. तो उसके बाद फर्स्ट ईयर की आपने डेप्रिसिएशन 1600 माइनस की तो रिमेनिंग बैलेंस आपके सामने 8400 है. और इसी तरीके से अगला 1600 माइनस किया तो 6800 एंड एट द एंड ऑफ 5 years योर बुक वैल्यू शोज दैट दी $2000. इट मीन्स आपको हर हाल में एंड पे सॉल्वेज वैल्यू को बचाना है. तो ये डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन मेथड था. आई थिंक, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड all the procedures to the preparation of straight line method. बहुत आसान है. और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, अकाउंटिंग हो, न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट हो, ये डेली प्रैक्टिस मांगता है. अगर आपने डेली प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स ना की तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें. तो उम्मीद है कि आप आज ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी. नेक्स्ट मेथड इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. यू कैन सी इन दिस स्लाइड हाउ वी विल हैव टू प्रेजेंट द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. नंबर 1, फर्स्ट ईयर you will charge the depreciation on the 10,000 और आपका रेट क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, 40% है. वो कैसे, 5 years यूजफुल लाइफ है और हर साल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत रेट विल बी दी डबल. तो रेट फॉर 20% रेट जो है वो डबल होगा. कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी. डेफिनेटली 40% हो जाएगा. तो हम पहली डेप्रिसिएशन 40% चार्ज करेंगे. तो आप इसका सेकंड लास्ट कॉलम देख सकते हैं जो कि शो कर रहा है डेप्रिसिएशन के कॉलम को. तो आप क्या करेंगे कि 10,000 का 40% लेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी दी 4,000 और यू विल हैव टू मेंशन दी 4,000 इन दिस कॉलम. और बुक वैल्यू से 10,000 माइनस 4,000 किया तो रिमेनिंग बैलेंस वुड बी 6,000. और फिर उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 6,000 के ऊपर जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया है 40% आपने लिया तो वो आ गया 2,400. जैसा कि आप डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में देख सकते हैं 2,400 को माइनस किया 6,000 से तो रिमेनिंग बैलेंस इज 3,600. तो नेक्स्ट ईयर आपने 3,600 के ऊपर 40% लिया तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 1,440 और 1,440 को आपने डिडक्ट किया 3,600 से तो बैलेंस इन फ्रंट ऑफ यू 2,160. नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप 40% ऑन दी 2,160. तो डेप्रिसिएशन आप बल्कि लास्ट ईयर आप ये करेंगे कि अगर आप 2,160 पे 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो योर सॉल्वेज वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड. तो हम ऐसा नहीं करेंगे. हम लास्ट ईयर को कैसे करेंगे कि लास्ट ईयर का हम फार्मूला लेके बैलेंस ले लेंगे. कैसे, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन.
Now you have book value 2160 minus salary value is given 2000, remaining balance will be $160. That will be the depreciation. Dear students, ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है कि जिसमें आपने रेजिडुअल वैल्यू को एट द एंड ऑफ द 5 years बचाना है, उसको आपने डेप्रिसिएट नहीं करना और डेप्रिसिएट नहीं होगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा. Dear students, next method is sum of years digit methods. Sum of years digit method means, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने साल है उनके डिजिट्स को आप सम अप कर लें तो वो हमारे पास 15 बनते हैं. फार्मूला हमारे पास है कास्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम शोज दैट द क्वेश्चंस 8000 कैसे आया, कॉस्ट थी आपकी 10,000, 2000 आपकी सॉल्वेज वैल्यू थी, वो माइनस की तो 8000 आपकी वो अमाउंट आ गई जिसको आपने डेप्रिसिएट करना है. सेकंड कॉलम शोज दैट दी फ्रैक्शन कैसे आप लिखेंगे, जो आपने डिजिट्स को सम अप किया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो 15 हो गया. तो आप रिवर्स चलेंगे 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15. और ये 5/15 आप 8000 पे लेंगे, यानी कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15. तो आपके पास डेप्रिसिएशन जो आएगी वो आएगी 2,666.67 आप, और यही आपकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी. और आप माइनस कर देंगे बुक वैल्यू से. बुक वैल्यू आपकी क्या है, 10,000 थी, 10,000 माइनस 2,666.67. और नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, 8000 के ऊपर 4/15 यानी कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 15 आप ये करेंगे. और उसके बाद आपकी अमाउंट जो आएगी तो वो डेप्रिसिएशन की 2133.33 और आप जो ऊपर अमाउंट आपने ली थी 2,666.67 उसमें एडअप कर देंगे तो ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी. और आप 7,333 बुक वैल्यू जो गिवन है 0.33 माइनस इसमें से कर देंगे 2133.33. इसी तरीके से आप जब थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन लेंगे तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 और आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. और प्रीवियस मेथड के तहत आप डेप्रिसिएशन को ऐड अप कर देंगे अकामुलेटेड में और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे लास्ट बुक वैल्यू को. और इसी तरीके से आप सारे का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. और एट द एंड ऑफ द 5 years यू मस्ट हैव $2,000 एज ए सॉल्वेज वैल्यू, क्योंकि सॉल्वेज वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएट नहीं हो सकती. तो उम्मीद है कि आपने डियर स्टूडेंट्स इस मेथड को भी बहुत आसानी से बड़े मज़े से समझ लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान है. डोंट गेट वरी बिकॉज यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस एंड स्टडी. नेक्स्ट मेथड डियर स्टूडेंट्स है यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड. फार्मूला जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन कैपेसिटी. कॉस्ट गिवन है 10,000, सॉल्वेज वैल्यू गिवन है 2000, माइनस किया तो 8000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आवर्स आर 16,000. तो आपने क्या किया 8000 डिवाइडेड बाय 16,000.50 पर आवर. जितने आवर्स आप चलाएंगे इस मशीन को उतने आवर्स की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर देंगे. सपोज आपने पहले साल 3,000 आवर्स मशीन पे काम किया, 3,000 मल्टीप्लाई बाय दिस रेट क्या दिया हुआ है $0.50 तो मल्टीप्लाई बाय 3,000
इसका मतलब है योर डेप्रिसिएशन विल बी दी 1500 एट दी फर्स्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड था आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। तो अभी तक हमने 4 मेथड पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड्स। आई होप कि चारों मेथड्स आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर अंदाज में आप इनको कर सकेंगे। ये चैप्टर की एंड की समरी है कि बल्कि चैप्टर के एंड पे कुछ आपके प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, हम उनको अभी हल करके, पहले वाले जो एग्जाम्पल थी और वो हलशुदा थी, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इनको हम हल करेंगे और उम्मीद है कि प्रीवियस जो अभी मैंने बता के हटा हूँ ये माइंड में होगा और आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो ये आपके सामने स्लाइड ओपन है, स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक, तो प्लीज क्वेश्चन को रीड करें और मैं आपको भी हल करवाता हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगा। An item of equipment acquired on January 1st at a cost of $100,000 has an estimated life of 10 years required. Assuming that the equipment will have a salvage value $10,000, determine the depreciation for each of the first 3 years by the straight line method, declining balance method, sum of the year digit method। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डियर स्टूडेंट ये है, एक एसेट आपने बाय किया जिसकी वैल्यू $100,000 है, साल्वेज वैल्यू $10,000 है और उसकी जो लाइफ है वो 10 इयर्स है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप फर्स्ट 3 इयर्स की डेप्रिसिएशन हमें बताएं, लेकिन 3 इयर्स की बजाय मैं आपको कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हम करें क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे हल होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लीज जरा देखें कैसे मैं हल करता हूं। स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड को हल करेंगे। फार्मूला क्या बताया था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू divided by useful life. What is the formula? Cost minus residual value divided by useful life. Question में cost given है, क्या given है cost? 100,000 and residual value is 10,000 sorry. $100,000 minus 10,000 divided by 10 years, 90,000 divided by 10 years, 9,000। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 9,000 होगी। हाउ वी कैन प्रेजेंट दी 9,000 एट द एंड ऑफ दी 10 years, एक स्ट्रक्चर में बनाने लगा हूं, इसमें हम कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम विल बी कंटेन द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर 2 computation of depreciation, number 3
accumulated depreciation. Fourth column is book value. ये फोर्थ कॉलम हम बनाएंगे और इसमें हम इसको प्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर स्टार्ट होंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 0 पे बुक वैल्यू क्या होगी? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं 100,000, यानी कि इसमें सॉल्वेज वैल्यू माइनस नहीं होगी, इसलिए कंप्लीट अमाउंट आप लिखेंगे. तो फर्स्ट ईयर की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 10. क्या मतलब? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 10 years यूजफुल लाइफ. तो 9,000 विल बी दी फर्स्ट ईयर depreciation. Accumulated will be the same 9,000 and book value will be the 100,000 minus depreciation 9,000, 91,000. Next year 9,000 also and accumulated will be the 18,000. फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन को आपने ऐड कर दिया. और बुक वैल्यू 91,000 से डेप्रिसिएशन 9,000 को माइनस किया तो हमारा बैलेंस जो है वो 82,000 हो गया. थर्ड ईयर 90,000 डिवाइडेड बाय 10 अगेन 9,000. Accumulated will be the 27. So 82,000 minus 9,000, 73,000. 90,000 divided by 10, 9,000. Accumulated will be the 36,000. Remaining balance is 64,000. Fifth year depreciation is also 9,000. Remaining balance is 55,000. $54,000 will be the accumulated depreciation. 46,000 will be the book value. $63,000 will be the accumulated depreciation. $37,000 will be the book value. 8 years. $72,000 accumulated depreciation. 28,000 will be the book value. $81,000 will be the accumulated depreciation. $19,000 will be the book value at the end of the 9 years. $90,000 will be the accumulated depreciation, and at the end of the 10 years will be the book value is 10,000. तो हमारा क्वेश्चन यही था कि एट द एंड ऑफ द 10 years आपकी जो बुक वैल्यू है वो सॉल्वेज वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए. तो ये प्रेजेंटेशन का वे है
जो कि लास्ट मैंने आपको एक स्लाइड में एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था। अभी हमने क्वेश्चन को खुद रीड आउट करके हमने खुद न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली हल करने के लिए दूसरा मेथड है जो कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था? डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और 100,000 उसकी कॉस्ट है, 10,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 10 ईयर्स लाइफ है। तो हम इसको प्रेजेंट करेंगे एक टेबल फॉर्म में। 4 कॉलम टेबल बनेगा। फर्स्ट कॉलम विल बी दी नंबर ऑफ ईयर्स, सेकंड कॉलम कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, third column will be the accumulated depreciation, fourth column will be the book value। 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 पे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज $100,000 और 0 पे आपकी डेप्रिसिएशन या कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी। फर्स्ट ईयर वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। हाउ वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन? 100,000 40%। 40% क्यों किया? कि हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको एक्सीलरेटेड भी कहते हैं, 200% डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो रेट नॉर्मल इसका था 10 ईयर लाइफ है, तो 10% इसका रेट है, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डबल रेट होगा तो 20% हो जाएगा। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी दी 20,000 और accumulated will be the same 20,000 and book value will be the 80,000। कैसे? 100,000 book value minus depreciation expense 20,000, remaining balance will be the 80,000। नेक्स्ट ईयर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो इसमें नई बात सीखने वाली है, जो कि लास्ट उसमें मेथड में हमने नहीं किया क्योंकि उस मेथड में ऐसा नहीं करना होता। तो वो क्या मतलब है कि रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर नेक्स्ट ईयर की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास क्या आया है? 80,000। तो रिमेनिंग बैलेंस 80,000 पे हमने 20% लिया, तो वैल्यू इज 16,000। तो 16,000 आपने इसमें ऐड अप किया एक्यूमुलेटेड में, तो दैट विल बी दी 36,000, और आपने माइनस करना है 16,000 को किस में से? माइनस करना है आपने बुक वैल्यू 80,000 में से। रिमेनिंग बैलेंस विल बी दी 64,000। इसी तरीके से हम थर्ड ईयर पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 64,000 पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे। ये बात ध्यान में रखें। $64,000 मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 100, 12,800 विल बी दी डेप्रिसिएशन, और 12,800 को ऐड अप कर देंगे हम 36,000 में। और 12,800 को माइनस कर देंगे 64,000 से, remaining balance will be the 51,200। फोर्थ ईयर 51,200 पे हम 20% लेंगे,
तो हमारी डेप्रिसिएशन आएगी 10,240। तो इसी तरीके से इसको आप ऐड कर देंगे 48,800 में और माइनस कर देंगे 51,200 से, और इसी तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है। और लास्ट ईयर जब आपकी डेप्रिसिएशन 10,000 के करीब पहुंच जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपने क्या करना है कि उसका 20% नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 20% लेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगी और सैलरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट ईयर में आपने जाके एक फार्मूला के तहत डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। फार्मूला क्या मैंने बताया था? बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू अब कहां से लेंगे? जो कि बुक वैल्यू वाला कॉलम है, उसकी जो लास्ट अमाउंट आपकी आई होगी वो बुक वैल्यू होगी, जो कि 10,000 से कम होगी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू आपकी ऑलरेडी 10,000 गिवन है, तो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा विल बी दी डेप्रिसिएशन। तो ये जनाब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को हल करने का मेथड था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड इज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ये यहाँ पे 10 ईयर्स दिए हुए हैं, तो सम ऑफ कैसे करने हैं जरा देखिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, दिस इज द मेथड। और इन सबको आप कैलकुलेट कर लें कि कितने टोटल बनते हैं। 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 15 21 28 36 45 and 55, टोटल विल बी दी 55। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम इसको ये करेंगे कि हम इसकी फार्मूले के तहत सैलरी वैल्यू वगैरह माइनस कर लेंगे। फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से आप इसको डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट है 100,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 10,000 डिवाइडेड बाय 10, टोटल आपकी बेसिकली 90,000 के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन हम इसको चार्ज जाके करेंगे फॉर्मेट के अंदर कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। हाउ वी विल प्रेजेंट दी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड डेप्रिसिएशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल we will write down the basically number of years, computation of depreciation, next column is accumulated depreciation, last column is book value। 0 ईयर पे बुक वैल्यू होगी 100,000 और फर्स्ट ईयर पे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 3 इयर्स तक आप करें। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको ऐसे इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। 90,000 जो हमने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ली तो वो 90,000 आया, डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई बाय लास्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के हमारा डिजिट है 10 डिवाइडेड बाय 55, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 55 से। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 55। इसी तरीके से थर्ड ईयर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 55। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने 10 इयर्स तक
बिल्कुल इसी तरीके से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अकॉर्डिंग टू दी सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। फोर्थ ईयर में 9000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 55। फिफ्थ ईयर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 55। सिक्स ईयर 90,000 multiplied by 5 divided by 55, 7 years. 90,000 multiplied by 4 divided by 55, 8 years. 90,000 multiplied by 3 divided by 55, 9 years पे जाके क्या करेंगे? 90,000 multiplied by 2 divided by 55 and last year पे 90,000 multiplied by 1 divided by 55। बाकी कॉलम इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे जैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन में और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में किए। तो इसमें ये बात नहीं थी कि हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो आपने रिवर्स ईयर से कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है और टोटल से डिवाइड करते जाना है। टोटल किस चीज़ का? ईयर्स के डिजिट का टोटल, यानी कि 55। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत आसान है और इसकी प्रैक्टिस मज़ीद क्वेश्चन आप डिफरेंट बुक से लेके कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। We will discuss another problem. Already this problem also taken from your textbook financial statement by Gibson। क्या है ये प्रॉब्लम? मैं इसको प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, डिस्कस करते हैं, आप भी देखिएगा। An item of equipment acquired on January 1st at a cost of $60,000 has an estimated use of 25,000 hours during the first 3 years. The equipment was used 5,000, 6,000 and 4,000 hours respectively. The estimated salvage value of the equipment is $10,000. What is the requirement? करना क्या है इसमें? Determine the depreciation for each of 3 years using the units of output method. ये क्वेश्चन बेसिकली यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड के मुताबिक है कि आपने उस मेथडोलॉजी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो माइंड में रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज $60,000, salvage value is $10,000, total life of the asset is 25,000 hours और उन्होंने फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर 6,000 और थर्ड ईयर 4,000 आवर्स यूज किए। तो रिक्वायरमेंट यह है कि इन तीनों के मुताबिक प्लीज फाइंड आउट दी डेप्रिसिएशन फॉर 3 years। देखिए कैसे हल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पर यूनिट डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या होगा? यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड के तहत प्लीज देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड, formula will be the cost minus residual value divided by total number of hours. Cost is already given 60,000,
minus residual value is also given $10,000 and divided by total hours are given 25,000 hours. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि मैंने कॉस्ट लिख दी जो कि गिवन है 60,000, उसकी रेजिडुअल वैल्यू लिख दी जो कि गिवन है $10,000 और 25,000 आवर्स मैंने लिख दिए जो कि गिवन है. तो अब पर यूनिट हम रेट निकाल लेते हैं. माइनस किया तो 50,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 25,000 क्या मतलब, एक आवर की जो डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी दी $2 पर आवर. तो लिहाजा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बताया गया है कि फर्स्ट ईयर आपने 5,000 और सेकंड ईयर आपने 6,000 आवर्स और लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर 4,000 आपने आवर यूज किए. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईच ईयर वेरी इजीली. फर्स्ट ईयर computation of depreciation 5,000 hours multiply by $2 rate. तो depreciation will be the 10,000 for the first year. बहुत आसान है. जब आप रेट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना बहुत इजी है. जैसे कि आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, 5,000 हमारे पास आवर थे, $2 पर आवर हमारे पास रेट था, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो नाउ वी हैव 10,000 डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर. आई थिंक इसको अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट ईयर हमारे पास 6,000 आवर्स हैं. Computation of depreciation for second year how many hours we have worked in second year? Definitely data is given 6,000 multiplied by 2 12,000. तो dear students, second year में हमारी जो total depreciation होगी that will be the 12,000. क्या हमने किया, 6,000 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया रेट को. रेट जो है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमने कैलकुलेट कर ली हैं. और थर्ड एंड लास्ट ईयर हमें जो डेटा गिवन है हमने काम किया है 4,000 आवर्स का. तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, तो वो क्या है जी, 4,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8,000. क्या मतलब कि 4,000 आवर्स हमने काम किया थर्ड ईयर में, मल्टीप्लाई रेट से कर दिया, दैट विल बी दी 8,000. 8,000 विल बी दी डेप्रिसिएशन फॉर दी थर्ड ईयर. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है तो आप मजीद प्रैक्टिस कर लें. बुक में गिवन नहीं है तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं. मैंने आपको रेफरेंस बुक्स भी बताई हुई हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन आसानी से अवेलेबल हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपको डेप्रिसिएशन के मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग टर्म एसेट्स, लीजेस. लीजेस इज आल्सो पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स. Basically there are two types of leases, capital lease and operating lease. Basically capital lease will be the part of the long-term asset. In substance ownership recorded as an asset net of amortization. Investments. Sometimes companies want to invest to other companies, to other businesses,
That is called investment in other businesses like debt or equity securities. What does mean debt? Debt means basically sometime company purchased the bonds from other companies. तो जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की होगी दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज एंड और शेयर समटाइम्स कंपनी दूसरी कंपनी के परचेज कर लेती है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज? वेरियस पर्पसेस आर देयर. हेल्प टू मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप or to exercise control to other businesses. Debt classification, debt को classify किया गया basically. Held to maturity, carry debt, amortize cost, available for sale, carried at fair value. तो dear students, बॉन्ड को वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताता चलूं. बॉन्ड इज अ बेसिकली काइंड ऑफ बोरिंग व्हेन कंपनी डोंट वांट टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक. कंपनी कैन इशू द बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक एंड कंपनी कैन गेट द लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक. और बॉन्ड जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा 10 to 20 ईयर्स इसकी लाइफ होती है, मेच्योरिटी होती है. और बॉन्ड जो है बेसिकली इसके ऊपर जो इनकम बॉन्ड होल्डर को दी जाती है वो फिक्स होती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है बॉन्ड के ऊपर. नॉर्मली बॉन्ड पार वैल्यू भी इशू किया जाता है, लेकिन इसकी डिटेल हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा. इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है. इक्विटी सिक्योरिटी मीन्स कैरीड एट fair value, exception with the ability to exercise significant influence. The equity method is used. Cost is adjusted for the proportionate share of the rise, fall in the retained profits of the subsidiary investee. Long-term assets. Some long-term assets belong to intangible. Already I have told you intangible means you cannot feel, you cannot touch. That is called intangible assets. Today we will discuss in detail goodwill. Goodwill is intangible asset. Purchase of a business where price paid exceeds the fair value of net assets, that is called goodwill. Goodwill नॉर्मली आपको पता है कि जो आपके बिजनेस की वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू, उससे ज़्यादा अमाउंट पे बिजनेस खरीदा जाता है, क्योंकि बहुत अरसे में वो बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका होता है और उन्होंने नाम कमा लिया होता है. उस चीज़ की वो बेसिकली वैल्यू लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड गुडविल. ये हमारा एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट है. पेटेंट. नॉर्मली पेटेंट्स 20 ईयर्स इसकी लाइफ होती है. ये भी हमारा बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट है. अमोर्टाइज्ड ओवर चार्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ. और पेटेंट आपको पता है 20 ईयर्स की इसकी लाइफ है और ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट है. ट्रेडमार्क्स. इनडेफिनेट लीगल लाइफ, यानी कि इसकी लाइफ की कोई मुद्दत नहीं है. डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या है. नॉट अमोर्टाइज्ड. टेस्ट एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट. ये भी हमारा एक इंटेंजिबल एसेट था. नेक्स्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट है फ्रेंचाइजेस. लाइफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स के लिए हुआ फ्रेंचाइजेस का, तो आपकी जो लाइफ होगी 5 ईयर्स होगा. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50 ईयर्स के लिए हुआ तो योर लाइफ विल बी दी 50 ईयर्स. amortize over shorter or legal or
useful life. Another intangible asset is copyrights. Copyrights के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. Life of the creator plus 70 years. क्या मतलब? जिसने बुक लिखी या कोई मटेरियल लिखा, उसका कॉपीराइट उसके पास है, तो उसकी लाइफ प्लस उसकी लाइफ के अलावा 70 ईयर्स उसमें ऐड कर दें, तो ये कॉपीराइट्स की आपकी बेसिकली लाइफ है. ये भी हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स है. ये भी अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ. लाइबिलिटीज. Liability, already we have discussed about the liabilities. Liabilities are debt the company owes. Probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events. There are two types of liabilities: current liabilities and long-term liabilities. Current liabilities के बारे में बता चुका हूँ. Within 1 year जो पेमेंट होनी हो, that is called current liabilities. अगर more than 1 year हो, that is called long-term liabilities. Current liabilities, obligations whose liquidation is reasonably expected to require the use of existing current assets, creation of other current liabilities within 1 year or the operating cycle, whichever is longer. तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन थी. करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं? पेबल्स हैं. पेबल से मुराद वेजेस पेबल, सैलरीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. टैक्स पेबल एटसेट्रा. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द acquisition of goods or services. Unearned income, already we have discussed in previous lectures about unearned income, is also our current liabilities. When you get money, when you receive money from the customer in advance, तो आपके ऊपर liability है, obligation है कि you will have to serve them, कि आपको उनके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. जब तक आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, that will be the unearned income. तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि unearned income क्या है. It's our current liability. Other current liabilities as circumstances warrant, यानी कि वारंटी के बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वारंटी कोई कस्टमर क्लेम करेगा या नहीं, तो पार्ट ऑफ दी अदर करंट लाइबिलिटीज है. तो डियर स्टूडेंट्स, we have discussed today lot of things. Today we have learned lot of things. What are the things we have learned? Basic elements of the balance sheet: assets, current and fixed assets, tangible assets, intangible assets, liabilities, current liabilities, long-term liabilities and different depreciation methods. जैसे कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, we have discussed 4 types of depreciation methods: straight line method, declining balance method, declining को diminishing balance method भी कहते हैं, decreasing balance method भी कहते हैं, और हमने डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी डिस्कस किया. डबल डिक्लाइनिंग मेथड के अदर नेम्स हैं एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, 200% डेप्रिसिएशन मेथड, और एक 150% डेप्रिसिएशन मेथड भी होता है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया. और इसके अलावा हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड डिस्कस किया है. इसके अलावा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड डिस्कस किया है. और डिस्कशन के साथ साथ हमने इनके
न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और उम्मीद है कि आप इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा हमने करंट लाइबिलिटीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, जैसा कि हमने पेबल्स की बात की कि पेबल्स कौन कौन से हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, वेजेस पेएबल हैं, सैलरीज पेएबल हैं, ये हमने बातें की। इसके अलावा हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात की, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का लेक्चर हमारा कंटिन्यूड है जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। और इसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन की बहुत सारी एग्जांपल भी आज डिस्कस की। तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि बेसिक्स हैं, और डेफिनेटली इससे पहले भी आप इनके बारे में जानते होंगे, और उम्मीद है कि आज भी आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात बताता चलूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 100% बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलरेडी जो कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट है, और जितनी प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको सब्जेक्ट अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। तो मुझे उम्मीद है माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह हार्ड वर्कर भी हैं, आपके शाइनिंग फेसेस हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे अंदाज में मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।